السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون۔ سورہ سجدہ کی یہ آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اعتراض کرے۔ ایسے مجرموں سے اللہ ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت 22۔ اللہ فرما رہے اللہ کی آیت سے نصیحت کی جائے۔ اللہ کی آیت قرآن میں ہے اور کہیں نہیں ہے، دنیا کی کوئی کتاب میں قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب میں اللہ کی آیتیں نہیں ہیں، تو اللہ کی آیتوں سے نصیحت کی جائے سے مراد قرآن سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اعتراض کرے تو ایسے مجرموں سے اللہ بدلہ لینے والے، سمجھا، سیدھا جہنم، سمجھا۔ آیت سے نصیحت کر رہے ہیں نا آپ کو، بھائی قرآن سے نصیحت کر رہے ہیں نا، آیت پوری قرآن میں ہے، اس سے نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا۔ اللہ کے نبی بھی آیت پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں لوگوں کو، آیت پڑھ کے سنا رہے، قرآن میں ہی آیت ہے، پورے قرآن میں آیت ہے، یتلو علیہم آیاتی، میرا نبی آیت پڑھ کے سناتا ہے۔ اللہ بھی بول رہا ہے آیت سے سمجھا رہے پھر بھی نہیں مان رہے، نبی بھی آیت پڑھ کے سنا رہے، کوئی اور چیز نہیں، پورے قرآن میں دیکھ لو آپ، نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، میرا نبی آیت، تو قرآن میں ہی آیت ہے تو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے نبی، سمجھا۔ وہاں بھی آیت، یہاں بھی آیت، نبی بھی آیت پڑھ کے سنا رہے۔ پھر جو لوگ جھٹلا رہے اللہ کی آیت کو جہنم میں جائیں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیت کا انکار کریں گے، جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، سورہ بقرہ آیت 39۔ تو یہاں بھی آیت کو جھٹلائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ آیت میں اللہ کی سب باتیں، آیت کہاں ہے؟ قرآن میں، تو قرآن کو جھٹلائیں گے، قرآن کی بات کو جہنم میں۔ نبی بھی آیت پڑھ کے سنا رہا ہے، اللہ بھی بول رہا ہے جو لوگ آیت کو جھٹلائیں گے، نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آپ جب مر کے قیامت کے دن جائیں گے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے، ہر انسان سے ایک ہی بات بول رہا ہے، ہر انسان سے ایک ہی لفظ اللہ بول رہا ہے، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی۔ وہاں بھی آیت، آیت کہاں ہے؟ یہاں قرآن میں، تو ہر جگہ قرآن کی بات کر رہا ہے، آیت کی بات کر رہا ہے اللہ، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو تو نے جھٹلایا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 105، تکبر کیا، وہاں بھی آیت۔ سورہ زمر میں بھی دیکھ لو آپ، وہاں بھی آیت، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو نے تکبر کیا، جھٹلایا، سمجھا، انکار کیا میری آیت کا، سمجھا۔ تو ہر جگہ آیت ہی آیت ہے، آیت ہی آیت ہے، سمجھا۔ تو آیت کہاں ہے؟ پوری قرآن میں۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کی ہی بات اللہ کرے گا ہر جگہ، دنیا میں بھی بول رہا ہے آیت مانو، آیت سے نصیحت کرو، نبی بھی آیت پڑھ کے سنا رہے، سمجھا۔ کیا لوگ انکار بھی کر رہے تو آیت کا انکار کر رہے، جھوٹی حدیث مان کے، بخاری کی دوسری کتابوں کی حدیث مان کے قرآن کی بات، آیت کا انکار، قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے، سمجھا، ہر جگہ آیت۔ تو کیا پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ کہیں آیت ہے ہی نہیں، اور کچھ بھی ہونے والی قرآن کے اندر جو باتیں آیتیں ہیں، قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں، سمجھا۔ نہ بخاری کی اللہ پوچھ رہا ہے، نہ نبی بخاری پڑھ کے سنا رہے، نہ اللہ پوچھ رہا ہے حشر کے دن، سمجھے، نہ کہیں ذکر ہے پورے قرآن میں کوئی اور کتاب کا، سمجھا۔ یہ سب ہے نا دشمنوں کی سازش میں گر گئے لوگ، عوام کو حدیث کے نام سے گڑی ہوئی بات، سمجھا۔ اصلی بات، پیور بات، صحیح بات قرآن میں ہے، قرآن کی اتباع کرنے بولا اللہ تعالیٰ نے، کوئی اور کتاب کو مت پڑھو بولا، اتباع ہی مت کرو، سمجھا، اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے نازل کی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3، سمجھے۔ دوسری دوستوں کی اتباع مت کرو، دوسرے دوستوں کی اتباع مت کرو، مطلب عالم مفتی مدرسہ محدث کی جو کتاب ہے اس کی اتباع مت کرو، صرف قرآن کی اتباع کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے آسمان سے نازل کی۔ تو آپ لوگ تو زمین پہ جو لکھے ہیں عالم مفتی محدث اس کو مان رہے، آپ آسمان سے کیا نازل ہوئی ہے یہ کتاب قرآن، اس کی اتباع کرو، سمجھا۔ وہی سیدھا راستہ ہے، سمجھا، قرآن،
इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9। समझे आप? और यही मेरा सीधा रास्ता है, सूरह अनाम 153। इसी की इत्तिबा करो, यही मेरा सीधा रास्ता है, यही मेरा सीधा रास्ता है, इसी की इत्तिबा करो, और रास्तों पे मत चलो, और रास्ते ने और किताबों पे मत चलो, उस पे चल के भटक जाएंगे। समझे आप? तो इसी की इत्तिबा करो, सूरह अनाम 153। दूसरी किताब पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। हर जगह मामला आयत का, ये देखो आप, आयत 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 आयत, नबी भी आयत पढ़ के सुना रहा है, अल्लाह भी बोल रहा है आयत से नसीहत की जाए, फिर भी नहीं मान। वहां पहुंचेंगे तो अल्लाह बोलेगा मेरी आयत तेरे पास आई थी, तूने झुठलाया। समझा? तो हर जगह है, तो इस सब बातों से क्या पता चल रहा है कि घूम फिर के इसी पे आना है, घूम फिर के इसी पे चलना है, इसी की बात मानना है, इसी की बात की इत्तिबा करना है, इसी पे चलने का हुक्म है। समझे आप लोग कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब को मान रहे हैं? जो इंसानों ने लिखी है। कोई पैगंबर ने कोई किताब लिखी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब लिखी? साहबा ने किताब लिखी? अपनी इंसानों, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ये किताब, अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया तो अल्लाह उसका मैनुअल, इंस्ट्रक्शन, समझा, हुक्म, इंसानों को हुक्म भेजा है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या चीज करे तो जन्नत, क्या करे तो जहन्नम, सब इंसानों को गाइड, रहनुमाई, हिदायत नामा भेज दिया अल्लाह ने। कोई और किताब पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। समझा? सोचिए आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबी पढ़ रहे थे तौरात, समझा, तो आंख लाल, गुस्से में हो गया। आसमानी किताब तौरात, गुस्से में क्यों आए? क्योंकि कुरान आ चुकी है और तुम मिलावटी किताब पढ़ रहे। मिलावट इतने गुस्से में ना, अल्लाह की किताब है ना तौरात, क्यों गुस्से में आ गया अल्लाह के नबी से? क्योंकि इसमें मिलावट है, मिलावट वाली किताब पढ़ रहे गुमराह हो जाएंगे। तो कुरान मिलावट से पाक है ना, मिलावट नहीं कुरान में, तो इसको पढ़ो। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, फज़ाइल अमल पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे मिलावटी किताबों की। आसमान से थोड़ी आई, आलिम लोगों ने, मुफ्ती लोग ने, दुश्मनों ने सब उसमें डाल निकाल सब किया है। सोचो आप, मिलावट कितनी उसमें। सोचिए आप, आयत से ही क़यामत में फैसला होगा। हर इंसान जो अमल कर रहा है, कोई ना कोई आयत के मुताबिक कर रहा है, और कोई गलत काम कर रहा है तो कोई ना कोई आयत के खिलाफ अमल कर रहा है। हर इंसान दुनिया में जो भी काम कर रहा है, एक नेक काम कर रहा है, एक बुरा काम कर रहा है। समझा? नेक काम कर रहा है तो अल्लाह की बात के मुताबिक अमल कर रहा है, कोई ना कोई आयत के मुताबिक। और जो कोई गलत काम कर रहा है अल्लाह के खिलाफ, तो कोई ना कोई आयत के खिलाफ के इनकार कर रहा है, आयत के खिलाफ अमल कर रहा है, तो उसी को कुफ्र, काफिर बोलते हैं। झुटलाना आयत को, कुरान के खिलाफ, तो अल्लाह की बात। तो बुरे काम करने वाले का भी कुरान में दिया है कि ये बुरा काम तो कर रहा है तो जहन्नम में जाएगा, और जो नेक अमल कर रहा है इंसान, सब कुरान में दिया है। तो उसके ऊपर आयत के मुताबिक कुछ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ लोग आयत के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की बात को झुटला रहे हैं। समझा? बुखारी की हदीस तो सबसे खतरनाक कुरान के खिलाफ जो बातें हैं, 2, 4, 8, 10 बातें ऐसी खिलाफ है कि अगर आप एक बात भी मान लिए तो सीधा जहन्नम। अल्लाह की बात पर रद्द हो जाती, झूठ, अल्लाह की बात पर इनकार, झुटलाना हो। सोचिए आप, सब बातें बता दे रहा, अल्लाह ने बता दी है। समझे? कुरान के खिलाफ कोई भी बात है, कैसा पहचानेंगे? जब तक कि आप कुरान की जानकारी नहीं रखेंगे कि क्या है, पूरा कुरान मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे तो भटक जाएंगे। और किस पे दारो मदार है आप लोग का? आलिम मुफ्तियों पे दारो मदार है, आलिम पर डिपेंड है, आलिम पे भरोसे पे, उनकी, वो लोग जो फतवे दे रहे हैं आप वो मान रहे हैं। सोचो आप, वो क्या बोल रहा है, सही गलत आपके घर में परखने की चीज कुरान है, करेक्शन की, राइट एंड रॉन्ग कुरान घर में है ना, तो उससे चेक करो, ये आलिम बोल रहा है, ये फिरका बोल रहा है, ये आलिम बोल रहा है, वो आलिम बोल रहा है, कुरान के अकॉर्डिंग है, मुताबिक है कि कुरान के खिलाफ। आप पहले कुरान तो पढ़िए अपनी जबान में, तर्जुमे से। एक किताब नहीं पढ़े तो सीधा गुमराही, जहन्नुम। सोचो आप, एक किताब नहीं पढ़ने की वजह से कुरान अपनी जबान में जानकारी नहीं लेने से, क्या सही क्या गलत अपनी जबान में पढ़े तो मालूम पड़ेगा। आप लोग तो पूरा खाली अपनी जन्नत जहन्नुम का मामला है और पूरा भरोसा उन पे करके भटक गए। वो तो गुमराह है ही है, खुद तो गुमराह है और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। देखिए आप, हशर में बोलेंगे वो लोग, हम तो गुमराह थे, हम तुमको भी गुमराह किए। सूरह सफ़ात आयत नंबर 32। सोचिए आप, तर्जुमे से कुरान पढ़े, जानकारी होगी। समझे आप, बहुत कीमती चीज आपके पास है कुरान। समझे आप, कहीं भी क़यामत के दिन अल्लाह कोई चीज की नहीं पूछेगा आपको कि वो किताब पढ़ा था कि नहीं, ये किताब पढ़ा था कि नहीं, बुखारी पढ़ा था कि नहीं, फज़ाइल।
सब गुमराही किताबें इंसानों ने लिखी, दुश्मनों ने इसमें मिलावट की। अल्लाह पूछेगा मेरी किताब तेरे पास आई थी, मेरी आयतें आई थी, तो तूने तकब्बुर किया, झुठलाया, इनकार किया। मेरी आयतें आई थी, कई जगह पे है, मेरी आयतें आई थी तेरे पास, तूने झुठलाया। क्यों झुठलाया? हदीस मान रहे, अरे नबी ने फरमाया, अरे नबी ने फरमाया। नबी कुरान के खिलाफ बोले ही नहीं, दुश्मन की वो हदीसें नबी के नाम से उन्होंने डाला है, साहबा के नाम से डाला है। तो आप लोग है ना वो हदीस को मान के कुरान का इनकार, समझे आप? कैसे वो लोग डाले, कुरान में तो मिलावट नहीं कर सकते, तो इसीलिए किताबें लिखे, उसमें नबी साहबी के नाम से डाले, ताकि आप लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो जाए। वो हसद जलन की बिना पे वो लोग ऐसा करें। अल्लाह बताया ना कुरान में ये बात, अल्लाह ने बताया कि ये लोग चाहते हैं हसद की बिना कि तुम भी ईमान लाने के बाद वैसे ही हो जाओ उनके जैसे, इनकार करने वाले। समझे आप? सूरह बकरा आयत नंबर 109 देखो आप, वो अल्लाह बता दिया दुश्मन ने ऐसा हसद जलन की बिना पे तुमको, वो चाहते हैं कि ईमान लाने के बाद जहन्नमी बना दे, काफिर बना दे, इनकार करने वाला बना दे। काफिर का मतलब इनकार करने वाला, अल्लाह की बात को इनकार करने वाले को काफिर। समझे आप? वो लोग ने काम किया, अल्लाह बता दे। सूरह आले इमरान 100 नंबर की आयत, बहुत अहम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतियू फरीक़म मिनल्लज़ीना उतुल किताब यरद्दुकुम बादि ईमानिकुम काफिरीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह फरमा रहे, आले इमरान 100 नंबर की आयत 100। ऐ ईमान वालों, अल्लाह फरमा रहे, देखो अलर्ट कर रहे, होशियार कर रहे ईमान वालों को। ऐ ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब की बात को मानोगे तो तुमको वो ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे। पहले किताब की बात को मानोगे मतलब उन लोगों ने गड़ गड़ के बातें डाल दी है हदीसों में, तो उनकी बातों को मानोगे तो तुमको ईमान लाने के बाद काफिर बना। तुम ईमान ला चुके अल्लाह रसूल कुरान पे, बात अल्लाह की बात मानने के बाद तुम काफिर, इनकार करने वाले बना, अल्लाह की बात का इनकार करने वाले बना दिए ना आप लोग को, बना ही दिए ना आप लोग। सब झूठी झूठी हदीस को मान रहे हैं ना, कुरान के खिलाफ हदीस को आप लोग मान रहे हैं, जादू होता है, नबी पे हुआ है, मान रहे आप लोग। कुरान के खिलाफ जहन्नम, कुरान में मना है और आप लोग मान रहे हदीस, कुरान को रद्द करके हदीस मान रहे। तो लोग ने आपको ईमान लाने के बाद काफिर बना दिए। देखिए आप, जादू मान रहे हैं, जहन्नम में जाएंगे, थोड़े दिन सजा भुगत के आ जाएंगे, आप लोग मान रहे हैं ना, ये भी कुरान के खिलाफ हदीस बुखारी की, वो भी झूठी हदीस, सब झूठी बुखारी में मिलेंगी, कुरान के अपोस बुखारी में, कुरान की मुखालिफत बुखारी में। सोचिए आप, अल्लाह बोल रहा पूरे कुरान छान डालो, पढ़ डालो पूरा कुरान, जो उसमें गया हमेशा हमेशा रहेगा, खालिदीन फीहा खालिदीन फीहा खालिदीन फीहा, पूरे कुरान में हमेशा हमेशा रहेगा। सोचिए आप, ये सब बातें बहुत कीमती बातें हैं, सब मामूली आलिम मुफ्ती मदरसा आपसे छुपाए सब बात बता रहे नहीं, हक बात प्योर। सोचिए आप, जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेंगे, अल्लाह बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे जाएंगे और वापस। तो सब झूठी बात को मान रहे, अल्लाह की बात का इनकार, आयत का इनकार, कुरान का इनकार। सोचिए आप, सब बात आप मान रहे, जो जो कुरान में मना है। अल्लाह बोल रहा है किसी के नाम का मत खाओ, आप लोग खा रहे थे उसके नाम का, समझे आप? गलत। इसाले सवाब पूरे कुरान में अल्लाह बोला, तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा, उनका अमल उनके काम आएगा, तुम्हारा किया हुआ उनके काम नहीं आएगा, उनका किया बोल रहा है, इसाले सवाब नहीं है, अल्लाह बोल रहा है। तो आप लोग कर रहे, मान रहे, तो अल्लाह की बात को झुठला रहे, अल्लाह की आयतों का इनकार करके अमल कर रहे, सीधा जहन्नुम में जाएंगे। समझे आप? सोचिए, आयत का इनकार कुफ्र है, आयत से नसीहत, कुरान से नसीहत की जाए फिर भी नहीं मान रहे। सोचिए आप, कितनी भारी बात है, अल्लाह की आयतों का इनकार कुफ्र का। फिर एक लाइन, एक वर्ष, एक सेंटेंस अगर आप इनकार करें तो आप कफरू भी आया कि ना काफिर हो जाए, झुठला है काफिर। झूठी हदीस को मान रहे बुखारी की, सच्ची बात कुरान की रद्द, सच्ची कर सकते। जो आलिम मुफ्ती सब कर रहे हैं, सब मुनकर कुरान है लोग, आपको नहीं पता है, मुनकर कुरान, कुरान की बात का इनकार। समझे आप? हदीस मान रहे झूठी, झूठी हदीस को सच्ची बता रहे और सच्ची बात कुरान की, कुरान की सच्ची बात को रद्द, झूठी हदीस बुखारी। समझा? साजिश समझ रहे, पूरे वर्ल्ड में खतरनाक साजिश, कुरान से दूर करने की, दूसरी किताब की मान लो, दूसरी किताब की बात को मानो। समझे आप? पढ़िए तर्जुमे से, बहुत कीमती चीजें, आलिम मुफ्ती मदरसे के भरोसे मत रहिए। समझे आप? नोट देते हो क्या बंडल आलिम को? नहीं देते हो ना, क्योंकि भाई कीमती है, तो ईमान कितना कीमती, जन्नत कितनी कीमती, उसको छोड़ के आप उन पे भरोसा करें, सीधा जन्नत में जाएंगे। वो तो खुद घूम रहा है, तो आपको भी ले जाएंगे, फिर वही होगा हशर में आप लड़ेंगे। अल्लाह जिन्होंने हमको गुमराह के दिखा उनको पैरों से कुचल डाले। सूरह हामीम सजदा फुसिलत आयत नंबर 29,
हाथ चूम रहे, हाथ आलिम मुफ्ती उनको दावतें दे रहे, उनके बोलने पे चल रहे, उनके फतवे पे ईमान ला रहे। समझा? उस दिन बोले अल्लाह हमें दिखा दे ताकि उनको पैरों तले कुचल डाले। समझा? सोचो वो अल-अहज़ाब में भी 67-68 67-68 अल्लाह जिन्होंने हमको गुमराह किया, हमने अपने बड़ों का और सरदारों का कहा माना, उन्होंने हमको गुमराह किया। बड़ों और सरदारों को समझा? आलिम मुफ्ती जिसके कहने पे चले, उन्होंने हमको गुमराह किया तो उनको दुगना अज़ाब दे। आज दावतें हाथ चूम रहे, गले मिल रहे, कल बोलेंगे अल्लाह उनको डबल सजा दे। समझे? आप सोचिए, बहुत अहम बातें है सब। कुरान पे चलिए, आयत कुरान की आयत पे ईमान रखिए, एक एक बात, एक एक लाइन पे ईमान रखिए अल्लाह की बात का। अल्लाह की बात अगर मालूम रहेगी कुरान की, कुरान फुरकान है, क्राइटेरिया टू जज राइट एंड रॉन्ग। कुरान सच और झूठ बात का फैसला करता है। समझा? फुरकान है कुरान। और तारीख, सूरह तारीख, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये कुरान सच और झूठ का फैसला करता है, सब बता दिया। सूरह शूरा आयत नंबर 24, अल्लाह अपनी बात से सच झूठ को मिटाता है। अल्लाह की बात क्या है? ये है अल्लाह की बात, ये है इसमें कलाम अल्लाह। अल्लाह अपनी बात से झूठ को मिटाता है, सच को सच साबित करता है। तो कुरान से सब हदीसें चेक करो, कुरान के मुताबिक लो, कुरान के खिलाफ है तब जाके आपको समझ में आएगा। लेकिन 300 पारा पूरा कुरान तर्जुमे से अपनी जबान में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। समझे? पढ़िए आप, किसी के भरोसे पे नहीं रहिए, कीमती चीजें जन्नत, नहीं तो जहन्नुम में चले जाएंगे। समझे? आप किसी के भरोसे मत रहिए, कुरान पढ़िए, कुरान से सही और गलत जानकारी लीजिए, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है आपको पता चल जाएगा। वो आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।